કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને આપણા દોસ્ત કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલના નમસ્કાર. હે 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 હો આહા જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. કથા છે ભરી કથા છે ખેડૂતોની કથા છે. વ્યથા છે ભઈ વ્યથા છે ખેડૂતોની વ્યથા છે. ખેડૂતોની અમૃત વાણી કિસાન વાણી. કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી. મીઠી, હા અમૃત નામ સાંભળી શકો દિવસ? અમૃત હા મેં સાંભળ્યું છે. અમૃત એટલે એકદમ મીઠું. એમ? હા અમૃત એટલે મીઠું? હા અમૃત એટલે મીઠું. આપણે નહીં કહેતા કે અમૃત જેવું ફળ છે આ એ. મીઠી, અમૃત જેવું ફળ છે એમ તે કહ્યું ને, એટલે મીઠું તો ખરું જ, પણ અમૃત એટલે એવું કહેવાય છે કે જે ખાવાથી આપણા શરીરના તમામ રોગ દૂર થઈ જાય અને આપણું શરીર હૃષ્ટ પુષ્ટ થઈ જાય, એટલે કે આમ મજબૂત થઈ જાય, ઉર્જાવાન બની જાય, એવું જે ફળ હોય ને એને અમૃત ફળ કહેવાય. બોલ. તો અમૃત ફળમાં તો મને તો જામફળ જ મીઠું લાગે છે એકદમ. એમ? હા, કારણ કે એમાં એકદમ મીઠાશ હોય છે. પણ મીઠી, કોઈ પણ વસ્તુ મીઠું હોય ને હા એ બહુ ખાવું સારું નહીં. હા, પણ ફળ તો ચાલે, ખવાય. એમ? હા, ફળમાં કંઈ વાંધો ના આવે. મોરસ બહુ ના ખવાય. મોરસ બહુ ના ખવાય એટલે તો કહેવાય છે કે આ ત્રણ સફેદ છે ને ઝેર સમાન છે. એ ત્રણ કયા કયા ખબર છે? એક મીઠું, મોરસ અને ત્રીજું નહીં ખબર. ત્રીજું નહીં ખબર? ના. ત્રીજો મેદો. મેદો? પણ મેદો તો આપણે નહીં ખાતા. એમ? હા. મેદો ડાયરેક્ટ ના ખાતી હોય મીઠી તું, પણ મેદામાંથી બનેલી પૂરી, મેદામાંથી બનેલા સમોસા, કચોરી, આવું બધું તો ખાય છે જ ને? સમોસા ને કચોરી તો ખાઉં છું. હા. તો મીઠી એ મેદો જ ખાધો કહેવાય ને. પણ હવે કોક દિવસ તો ચાલે. એટલે એ ઝેર ખાવાય કોક દિવસ. એમ? પણ એકાદ બે તો ખવાય ને. હવે ઈચ્છા થઈ જાય તો શું કરવાનું? ઘણી વખત ડૉક્ટર એમ કહેશે કે જો તમારે લાંબુ આયુષ્ય જીવવું હોય, તંદુરસ્ત જીવન જીવવું હોય, આરોગ્ય સારું રાખવું હોય, તો આ મેદો, મોરસ અને મીઠું, આ ત્રણ વસ્તુ પર કંટ્રોલ રાખવાનો, એટલે માપનું ખાવાનું, અને થોડુંક કોકોક દાળ ખાવા, એવું તે કહું તો ખરું. એ તો સમોસું ને કચોરી. તો ખાવાવાળા તો એમ કહે કે કોકોક દાળો ભાઈ પાવે ખવાય ને, પીઝાય ખવાય ને, બર્ગરે ખવાય. એ તો બધાની પસંદ પર આધાર હોય ને. હવે એટલે ખાવું ના ખાવું તો દરેકની પસંદગીની વાત છે, પણ ખાધેલું પચવું જોઈએ. હા, પછી ખાઈને બસ બેઠાડું જીવન જીવીએ ને તો જાત જાતના રોગ થાય જ. પણ ઘણા લોકો શું કરે, બધું ખાય મેદાનું, પછી એના પર બધી સોડાઓ પીવે કે પચી જાય, કશું ના થાય એમ કે. એટલે મીઠી, આ તો બેઠો ખાઈએ ને તો પછી હેરાન થઈએ, અને કહેવાય છે કે પેટમાં કચરો જોમ થાય ને એટલે જાત જાતની બીમારીઓ આવે. અને આપણે તો કેવું મહેનત કરે ને એટલે આપણને તો કશું ના થાય. એમ? હા. પણ માપનું ખાવાનું. હા, મહેનત કરો કે ના કરો, મેદો, મોરસ ને મીઠું, આ ત્રણેય સફેદ ઝેર કહેવાય. પણ મારે તો મોરસ પણ વધારે ખાવા જોઈએ છે. એકદમ મીઠી ચા પીવા જોઈએ. ભાઈ, તારું નામ જ મીઠી છે એટલે મીઠી જ ચા તું તો પીવે ને, પણ ગોળની ના પીવાય? ગોળની તો નહીં ભાવતી, મજા ના આવે એમ. એમ? હા. જેમ મજા ના આવે એટલે મોરસવાળી ચા હોય ને તો જ મજા આવે એમ. મીઠી, બરાબરનો વરસાદ પડતો હોય, વરસાદમાં પલળી ગયા હોઈએ, અને એક બાજુ ગોળમાંથી બનાવેલી ચાનો કપ હોય ને બીજી બાજુ મોરસમાંથી બનાવેલી ચાનો કપ હોય, તે વખતે જો તે ગોળની બનાવેલી ચા પીતી હોય ને તો તું જાતે કહું કે આ હા 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 હા, આ ઠંડી મોસમમાં ગોળની ચા જેવી મજા બીજે કહીએ નહીં. મેં તો ચાખી હતી પણ મને ના ભાવી. એટલે
ભાવાની વાત નહીં મીઠી, એ શરીરમાં જાય ને પછી એકદમ શક્તિ આપે ને ગરમી આપે. મને તો આમ મોરસવાળી ચા પીવું ને આદુ નાખીને, પછી ઘણીવાર મસાલાવાળી ચા તો બહુ ભાવે એમ. પણ મીઠી આપણે મૂળ વાત તો પેલા અમૃત ફળની કરતા હતા કે અમૃત ફળ એટલે જામફળ. એ જામફળ તને ભાવે છે તો આ જામફળ વરસમાં તને કેટલી વખત ખાવા મળે છે? મને તો બહુ બધી વાર ખાવા મળે, કાયમ મળે જ છે એમ. એમ કારણ કે ગામડામાં તો ઝાડ હોય જ આપણે, એટલે હું તો તોડી તોડીને ખાઈ જ લઉં. શિયાળે, ઉનાળે, ચોમાસું તઈને ઋતુ. હા. પણ મીઠી આ જામફળ 12 ફળ તો છે જ, પણ જે ખેડૂતો આ જામફળની ખેતી કરે છે ને એ લોકો શું કરે છે ખબર છે? એમાં રોગ જીવાત બહુ આવે નહીં, એનું નિયંત્રણ થાય અને ફળ સારી ગુણવત્તાવાળું મળે, એટલા માટે એ શિયાળામાં જામફળ લેવાનું પસંદ કરે. એ તો પેલા બીજી જાતના જામફળ આવે ને એમાં જ ને. બીજી જાતના એટલે પાછા કેવા? એ બધા કંઈક મોટા મોટા આવ્યા છે માર્કેટમાં આવે તો. બીજ વગરના. હા. એ પાછા કહે છે સીડલેસ જામફળ, એટલે એમાં બીજ નહીં. પણ મને તો દેશી જામફળ બહુ ભાવે, એકદમ મીઠા લાગે. હો હે ને? હા. તો મીઠી, આજના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં આપણે છે ને જામફળની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ વિશેની વાત સાંભળવાની છે. અને આપણા પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના વેજલપુર ખાતે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને ત્યાં જામફળની અનેક જાતો વિકસાવવામાં આવી છે. આવી બધી જાતો તું જઈને જોવે ને મીઠી, તો તને એમ થાય કે આહા, આટલી બધી જામફળની જાતો હશે. મેં તો હજુ પેલું લાલ જામફળ આવે છે ને, લાલ આવે છે, ગુલાબી આવે છે, એ નહીં ખાધું. હો એમ? હા, એ મને ખવડાવવું પડે તમારે. મીઠી, ખવડાવવું પડે એમની, એના છોડ જ આપણે લાવવાના છે. અને અત્યારે બરાબર ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે, એટલે આપણે આ જામફળના છોડ લેવાના છે. અને કઈ રીતથી એની વાવણી કરવાની, કઈ રીતથી માવજત કરવાની, એ બધી જ વાત આજના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં સાંભળવા મળવાની છે. અને આજના કાર્યક્રમમાં વિષય નિષ્ણાત ડોક્ટર દયાશંકર મિશ્રાની વાતચીત સાંભળીશું. એ પહેલા સાંભળે એક સરસ મજાનું ગીત. આપણા મલક નાય માયાળુ માનવી, આપણા મલક નાય માયાળુ માનવી, માયા મેલીને વિયા જાસો મારા મેરબાન, હાલો જઈ આપણા મલકમાં, તમારી માયા મેલીને વિયા જાસો મારા મેરબાન, હાલો જઈ હાલો જઈ આપણાય મલકમાં, ઉતારા કરી ઘોડી ચડજો મારા મેરબાન, હાલો જઈ આપણા મલકમાં. હાલો જાય આપણાય મલકમાં, તમે નાવણિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન, હાલો જાય આપણા મલકમાં.
આપણા મલક માય ઉના ઉના દેવરા પૂજનિયા કરી ગોળે ચડજો મારા મહેરબાન હાલો જાય આપણા મલકમાં એ તમે ભોજનિયા કરી ગોળે ચડજો મારા મહેરબાન હાલો જાય આપણા મલકમાં હાલો જાય આપણા મલકમાં। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आपके दोस्त केतन रावल का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में एक ऐसे फल के बारे में बात करना है जो फल सभी को बहुत पसंद होते हैं। उसका नाम ही अमरूद है। खाने से अमरूद जैसा लाभ मिलता है और उसकी खेती करने से भी अमरूद जैसी आमदनी मिलती है। और ऐसा फल यानी कि जामफल। आज के कार्यक्रम में जामफल की खेती के बारे में बात करना है और हमने आकाशवाणी गोधरा के स्टूडियो में आमंत्रित किया है विषय निष्णात डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी को, जो केंद्रीय बागबान परीक्षण केंद्र वैजलपुर में प्रधान वैज्ञानिक के तौर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर दयाशंकर जी का। मिश्रा साहब, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केतन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आज आपने अमरूद को इंट्रोड्यूस किया है और जिस तरह से उसकी महत्ता आपने बहुत 2 शब्दों में बताया है, शायद ही ऐसा किसी ने आज तक इस अमरूद को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया रहा होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिश्रा साहब, आप कई सालों से अमरूद के पौधे पे काम कर रहे हैं। आपने जी। बहुत सारी सफलता पाई है। जी, आपके जो केंद्रीय बागबान परीक्षण केंद्र है इसमें बहुत सारी किस्में आपने लगाई है। जी शायद एक ही जगह पे इतनी सारी किस्में देखना एक अपने आप में गौरवपूर्ण होता है। जी। हमने भी कई बार आपकी वाड़ी की मुलाकात की है। आपने खुद अपने हाथों से तोड़ के हमें तरह तरह के फल खिलाए हैं। जी 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 कोई बड़े, कोई छोटे, कोई अंदर से लाल, कोई सफेद। एक एक अमरूद के पेड़ पे बहुत ढेर सारे फल हमने खुद देखे हैं। इसीलिए हम सबसे पहले तो आपको अभिनंदन देते हैं कि आपने जो डेवलप किया है गवर्नमेंट की जो नर्सरी का, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र है। आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। जी जी धन्यवाद। और अब बात करते हैं सबसे पहले ये कि ये अमरूद यानी कि जामफल की खेती आज हर जगह पे बहुत प्रचलित हो रही है। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं भी अपनी खेत में थोड़ी सी जगह में अमरूद का एक बाड़ी लगाऊं। तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है आज गुआवा की खेती? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आजकल जामफल की खेती इतनी अधिक मात्रा में किसान भाई क्यों कर रहे हैं। तो इसके 2 पहलू हैं साहब। उसी चीज़ की खेती होगी, वही प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा जो जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसके लिए कस्टमर होंगे और उसका रेट अच्छा मिल रहा होगा। तो आजकल जो हमारा कंज्यूमर है, जो कि कोई भी प्रोडक्ट है खरीदता है, वो बड़ा जागरूक है, बड़ा ज्ञानवान हो गया है। आजकल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, गूगल में सर्च करता साहब इस फला चीज़ खाने से क्या फ़ायदे हैं, क्यों खाना चाहिए। तो आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो एक टर्म है डॉक्टरिंग थ्रू डाइट। ऐसा भोजन हम ऐसी चीज़ें खाएं ताकि हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े। तो जामफल एक ऐसा फल है जो कि आजकल जो बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, 3-4 बीमारियां हैं जिससे सभी पूरी यंग जनरेशन से लेकर के वृद्ध तक प्रभावित हो रही है। उसमें से एक है डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन, खाना न पचना, या और इस तरह की कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आ रही है। तो आप कोई भी फल इसलिए खाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आपका इम्यून पावर तगड़ा रहे और आप लंबे समय तक यंग बने रहें और आप कोई किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। तो ये सब 2 चीज़ें हैं। डायबिटीज़ के लिए ये अच्छा फल पाया गया है, हार्ट की बीमारी के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा तमाम सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाए जाते हैं तो शरीर में कैंसर सेल को बनने से रोकते हैं। तो तमाम सारे इसके लाभ हैं। जिनको अपच की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन में भी लाभकारी है और विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इन सब बातों को किसान जो है कंज्यूमर जानते हैं। इसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ी तो किसान भाई इसको ज़्यादा लगाना शुरू किए। लेकिन इसमें सिर्फ इन्हीं बातों का ही वो योगदान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नई किस्में आई, नई तकनीकों का विकास हुआ
तो उसमें वैज्ञानिकों की बड़ी सराहनीय भूमिका रही। इस कारण भी इसकी जो है काफ़ी सारी बागवानी खेती काफ़ी अधिक मात्रा में हो रही है। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि उसके जो आयुर्वेदिक गुण है, ये जामफल के खाने से बहुत सारे रोग होते नहीं है, अगर हुए हैं तो वो ऐसे ही मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। खास करके आपने जैसे बताया कि कब्ज के लिए ये अमरूद एक रामबाण है, जो खाते हैं पेट साफ रहता है, अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, इसका ये एक ऐसा फल है जो कि साल भर में 3 बार इसमें फूल आते हैं और फल लगते हैं। पहला जो फूल आता है अम्बे बहार बोलते हैं, आम के समय जब फल आ रहा होता है तो उसमें फूल आता है मार्च अप्रैल के महीने में, और उसके वो मई तक भी फूल आता रहता है, और उसके फल पकते हैं जाके जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक इसके फल मार्केट में आते हैं। लेकिन ये फल बहुत छोटे होते हैं, इनमें मिठास कम होती है और पोषक तत्वों की मात्रा भी कम होती है, इसकी भंडारण क्षमता कम होती है, और इसमें कीटों का भी प्रभाव ज्यादा रहता है, बीमारी भी इसमें लगती है। इसमें जो है ज्यादा पोषणमान नहीं है और इसकी भंडारण क्षमता कम है। किसान भाई को इसमें जो है लागत ज्यादा लगानी पड़ती है और पैसा कम मिलता है, तो इसलिए इस फल को ना लें तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मार्केट है तो थोड़ा कुछ मात्रा में ले सकते हैं। दूसरा जो फूल आता है बारिश के समय, मानसून सीजन में, जुलाई अगस्त के महीने में उसका फल तैयार होता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के फरवरी के अंतिम सप्ताह तक उसके फल तैयार होते मिलते हैं, जिसमें फल का साइज बड़ा होता है, विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, मिठास ज़्यादा होती है, फल का कलर और साइज अच्छा होता है, पोषण मान अच्छा होता है। तो ऐसा फल जो है ज़्यादा लाभकारी होता है, कंज्यूमर के लिए भी, किसान के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसमें जो है 2 तरह की किस्में होती हैं जामफल में, एक सफ़ेद गूदे वाली और लाल गूदे वाली। हालांकि दोनों ही लाभकारी हैं, दोनों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, लेकिन जो लाल गूदे वाले फल हैं जिसमें लाइकोपिन कंटेंट ज़्यादा होता है, इस कारण जो है उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थोड़ा सा ज़्यादा होती है सफ़ेद गूदे की तुलना में। तो लाल गूदे वाले फल को अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए भी मिलता है, आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, आपकी जो है चमक बनी रहेगी। क्या बात है, लाल फल खाइए और लाल रहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। और मिश्रा साहब, ये जामफल की वाड़ी हर किसान लगाना चाहता है, तो ये भी बताइए कि जामफल की वाड़ी लगाने से पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, किसान भाई कई बार जल्दीबाजी करते हैं। कई चीज़ें हैं, जैसे आपको कोई भी फल वृक्ष लगाना है तो आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उस अमुक फल वृक्ष के लिए कौन सी जलवायु अच्छी है, किस तरह की मृदा चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और मार्केट में क्या उसकी डिमांड है कि नहीं। मार्केट, चूँकि आप एक व्यावसायिक खेती करने जा रहे हैं, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो मार्केट की डिमांड उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका फल बिकेगा और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो चूँकि ये जामफल जो है ये हमारे देश में जो है पुर्तगीज लोग लेके आए थे। ये जो है स्पेनिश लोग इसको फिलीपाइंस तक ले आए, फिलीपाइंस से पुर्तगीज लोग यहाँ पे ले आए 17वीं शताब्दी में, और धीरे धीरे ये इतना, चूँकि हार्डी इसका वृक्ष होता पौधा होता है, पूरे देश में फैल गया। ऐसा लगता है कि जैसे यहीं का देशज हो, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसकी उत्पत्ति जो ट्रॉपिकल अमेरिका है, तो हमारी जो क्लाइमेट है गुजरात की, या फिर ऐसी क्लाइमेट जहाँ पे ठंडी और गर्मी डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग तरीके से पड़ती हो, अलग अलग समय पड़ती हो, तो ऐसे जलवायु इसके लिए अच्छी मानी गई है। और ख़ास करके जहाँ पे पूरे साल भर सामान्य तौर पे करीब 1000 मिलीमीटर वर्षा होती हो पूरे साल भर में, तो वो अच्छा पाया गया हो। और इसके लिए मिट्टी ऐसी हो जिसका pH मान 6-7 के आसपास हो, और उसमें जल भंडारण की क्षमता हो, लेकिन जल निकासी की भी क्षमता हो, जल निकास का अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन उसमें अच्छा हो, तो ऐसी मिट्टी में इसको लाभकारी तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। और मिश्रा साहब, ये जामफल की खेती में बहुत सारी किस्में आपने पहले बताई कि लाल गूदे वाली, सफ़ेद गूदे वाली, उसके अलावा भी बहुत सारी होती है। तो व्यावसायिक तौर पे अगर कोई किसान उसकी खेती करना चाहता है तो ये भी बताए कि कौन सी किस्में लगानी चाहिए जिससे ज़्यादा मुनाफा पा सकता है? जी, आजकल 2 तरह की किस्में प्रचलित हैं मार्केट में जो आती हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। चूँकि जैसे जो अपनी प्रचलित किस्में हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार, ये दोनों सफ़ेद गूदे वाली किस्में हैं। ये पूरे अपने देश में प्रचलित हैं, बहुत पुरानी किस्में हैं, मीठी होती, खाने में इसका स्वाद और सुवास काफ़ी अच्छा होता है। खास करके सरदार में उपज ज़्यादा आती है और इसकी भंडारण क्षमता भी इलाहाबाद सफ़ेदा की तुलना में अधिक होती है। लेकिन और एक तरह की किस्म आई है जिसको आजकल मार्केट में, हालांकि वो कहाँ कैसे आई, इस वक्त विकास किसने किया, किसी को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे किसान उसको लगा रहे हैं। उसका कारण ये है कि उसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा है और उसकी उपज भी ज़्यादा है, उसका वजन भी ज़्यादा फलों का।
लेकिन उसमें थोड़ा मिठास कम है। तो ऐसी किस्में हैं, थाई के नाम जानते हैं, केजी गाओ के नाम जानते हैं, उसमें लाल गूदे वाली है, ताइवान पिंक के नाम जानते हैं। तो ये सब इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है, लेकिन इसमें क्या है, देख रेख और हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है, ड्रिप इरीगेशन फर्टिगेशन के साथ जो किसान भाई जाते हैं और हर साल काट छाट अच्छे तरीके से करते हैं, देख रेख करते हैं, तो उनको इसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। क्योंकि भंडारण क्षमता इसकी अधिक है, तो लंबे दूरी तक मार्केट में उसको भेजना आसान होता है। तो इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार तो पुरानी किस्में हैं। इसके अलावा जो हमारी जो किस्में हमारे ICR संस्थानों के द्वारा निकाली गई हैं, ललित है जो लाल गूदे की है, श्वेता सफ़ेद गूदे की है, अर्का किरण है लाल गूदे वाली है, इस तरह से और तमाम सारी किस्में निकाली गई हैं। तो इन सब किस्मों को लगाना चाहिए, तो आपको अधिक लाभ होगा। बाग लगाना है, सबसे पहले नया लगाना है किसी किसान को, तो ये जामफल की खेती का बाग पूरे साल में कौन से महीने में लगाना उचित है? तो दो तरह की जलवायु होती है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है। जहाँ पे कम वर्षा होती है और पानी की थोड़ा सा कमी रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप मानसून सीजन में जुलाई से अगस्त के महीने में उसको लगाना चाहिए। इसके लिए आपको मई के महीने में गड्ढे तैयार करने पड़ेंगे उपयुक्त दूरी पर। आप किस दूरी पर लगाना चाहते हैं? आज चूंकि अमरूद की बागवानी ज़्यादा सघन बागवानी किसान भाई लोग करना पसंद कर रहे हैं, तो सघन बागवानी में आप देख लीजिए कि आप ट्रैक्टर चलाना नहीं चलाना है, आप पास लेबर आसानी से मिल जाते नहीं मिल जाते हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है उसको उपयुक्त दूरी पे ही लगाएं। तो सामान्य तरीके से जो 5 से 6 मीटर की दूरी पे जामफल को लगाया जाता है, या इससे कम दूरी पर भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पाते हैं और कैसे मैनेज करेंगे। जी मिश्रा साहब, ये कोई भी पाक हो, खास करके बागायत पाक, इसमें कभी कभी कोई कीट दिखाई देते हैं, कुछ बीमारियां दिखाई देती है। ऐसे भी इस जामफल की वाड़ी में कुछ कीट दिखाई देते होंगे, तो विस्तार से बताएं कि इसमें कौन से हानिकारक कीट होते हैं, कुछ कीट फायदाकारक भी होते हैं, तो कैसे उनका फायदा लेना है और हानिकारक कीट को कैसे नियंत्रित करना है, इसके बारे में बताएंगे? जी, जैसा मैंने पहले बताया, इसकी जो ज़्यादा मात्रा में जो खेती जो किसान भाई कर रहे हैं, उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत ही ये विपरीत जलवायु परिस्थितियों पर सहिष्णु इसका पौधा, और इसी जगहों पे भी इसको लगा सकते हैं जहाँ पे और कोई फल या और फसल नहीं ले सकते हैं आप। तो खराब मिट्टी में भी ये आसानी से हो जाता है। और दूसरा एक कारण है कि इसमें बहुत ही कम कीट और व्याधियाँ लगती हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप बारिश का फल लेंगे तभी फल मक्खी का प्रकोप होता है, और आप ठंडी की फसल लेंगे तो फल मक्खी का प्रकोप ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो मतलब उसको, जिसको इकोनॉमिक डैमेज कहते हैं, उसके टर्म में तो शून्य के बराबर ही होता है। बहुत कम जो शुरुआती फल पकते हैं अक्टूबर के महीने में, उसमें कुछ लग सकता है, बाकी बाद में जब ठंडी बढ़ जाती है तो इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो कम लगता है। आपको चूंकि ठंडी का फल लेना है तो बाहर नियंत्रण करना पड़ेगा। चूंकि 3 बार फूल आता है, मैं पहले बता दिया आपको, तो उसके लिए आपको ठंडी फसल लेने के लिए जो कोई बरसात वाली फसल जो तैयार होनी थी उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो मार्च अप्रैल के महीने में मई तक जो फूल फल लगे आते हैं, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, एक रासायनिक विधि से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, रासायनिक तरीका है। दूसरा तरीका है प्रूनिंग, फूल तोड़ देना या फल को तोड़ देना। हाँ, छोटे से जो आप जिसके पास किचन गार्डन में हाथ से तोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरा जो नई बढ़वार है जिसमें फूल फल आया है उसको पत्ती सही थी तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। ठीक है। और दूसरा तरीका है सिकेटियर आता है, या कोई और तरह के और कई सारे यंत्र होते हैं जिससे आप उसको प्रूनिंग करते हैं, काट छांट उसको बोलते हैं। जी। ठीक है। तो मई के महीने, अप्रैल से मई के महीने में आपको फल जल्दी लेना है, मार्केट में भेजना है, देर से भेजना है, उस हिसाब से अप्रैल मई के महीने में आप 10 से 15% यूरिया का छिड़काव, 2 छिड़काव करना पड़ेगा 10 दिन के अंतराल पे। तो उससे जो है जो नए फल लगे होते हैं या फूल आए होते हैं वो झड़ जाते हैं। दूसरा तरीका है कि मई के महीने में 15 मई के आसपास, और एक ही दिन आपको प्रूनिंग नहीं करनी है, आपको प्रूनिंग अलग अलग दिन करनी है। तो अगर एक ही दिन प्रूनिंग करेंगे सारा फल एक ही दिन पक के तैयार हो जाएगा। तो अलग अलग दिनों में आपको प्रूनिंग करनी है। आप देख लीजिए कि आपको कितना बड़ा क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। तो उसके लिए मई के महीने में आपको जो पिछले साल के शाखाएं हैं, जो मैच्योर शाखाएं हैं, पेंसिल थिकनेस की हैं, तो उनको आप उसका जो लंबाई है ऊपर से जो है 50% आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपको सड़ी गोबर की खाद और उसके उम्र के अनुसार यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास की मात्रा, आधी मात्रा जो है उसको तुरंत दे करके, पानी दे करके
पौधे को छोड़ दीजिए। जी। फिर पानी जो है, चूंकि गर्मी का महीना है, आप 3 दिन के अंतराल में, 5 दिन के अंतराल पे देते रहिए। वो डिपेंड करेगा आपकी मिट्टी की पानी की भंडारण क्षमता कितनी है। इस तरह देख रेख करेंगे। 1 महीने बाद, करीब 30 से 35 दिन बाद, 40 दिन बाद नए कलर निकल के आएंगे, जिसपे नए फूल आएंगे, फल उसी पे लगते हैं। लेकिन कोई भी किसान कुछ भी पाक लगाने से पहले सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये जामफल में क्या लागत रहती है, कितने साल के बाद उत्पादन शुरू होता है, और हर पेड़ पर या तो हेक्टर में कितना उत्पादन मिल सकता है, इसके बारे में बताएंगे? जी जी, देखिए उसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। ये एक ऐसा फल है जो कि आप अगर जिस साल आप लगाते हैं, नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से ही आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि कम से कम आप दूसरी साल फल लेना चाहते हो, बहुत कम मात्रा में फल पेड़ों पर रखें, ताकि उसकी बढ़वार और उसका जो ढांचा तैयार होता है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, पौधा कमजोर न रहे। इसलिए जो है तीसरे साल से फल लेना चाहिए, या दूसरे साल से फल लेना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में फल लें। एक पेड़ से 2 किलो 2.5 किलो फल ही रोके, बाकी को थिन आउट करके फेंक दें, तोड़ के फेंक दें। ठीक है। तीसरे साल से आपको जो है 1 हेक्टेयर में करीब जो है 8 टन, क्या बात है, 2.5 एकड़ में 8 टन मतलब 80 कुंटल माल, हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग करते हैं सघन बागवानी पद्धति में, आपको 80 कुंटल माल तीसरे साल से ही मिल सकता है। जी। आपकी सारी लागत जो है, जितना खर्चा, तो प्रॉफिट आपको देते हुए तीसरे साल भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपकी सारी लागत निकल जाएगी। और 7वें साल से आप 25, 30, 40, 50 टन तक क्षमता है इसकी, 55 टन तक जा सकता है। एक बार पौधा लगाया कितने साल उसका आयुष्य रहता है? 20 साल तक बिल्कुल व्यावसायिक तरीके से उत्पादक रहता है वो। क्या बात है, एक बार लगाओ, तीसरे साल से लगातार 20 साल तक आमदनी पाते रहो। और अच्छी देख रेख करेंगे 40 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये ऐसा फल है, इसमें नई नई किस्में आती रहती हैं, किसान भाई बाग उखाड़ के नया लगा सकते हैं। बगीचा लगाते रहते हैं, जी। चेंज करते रहते हैं वो। और ये नई नई किस्में का संशोधन करना, वही तो आप जैसे कृषि के ऋषि का काम है, आप लगातार कर रहे हैं। जी जी जी। और पूरी आपकी टीम यानी कि केंद्रीय बागायत संशोधन केंद्र नए नए अलग अलग तरह के पौधे का संशोधन कर रही है, पूरे गुजरात में उसको लोगों को दे रही है, भलामन कर रही है। आज के कार्यक्रम में मिश्रा साहब, आपने आपका कीमती वक्त देके जामफल की खेती के बारे में जो विस्तार से किसानों को अवगत कराया, आपने वक्त दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી હમણાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી। મિત્રો, આ સાથે જ કાર્યક્રમ અહીં પૂરો કરીએ છીએ, તો કાર્યક્રમથી છૂટા પડવાની આપશો રજા। हे 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 हो आहा जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे 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 धरती नो छे छोरू मनडू एनु भोळू धरती नो छे छोरू मनडू एनु भोळू कथा छे भरी कथा छे खेडूतोनी कथा छे व्यथा छे भई व्यथा छे खेडूतोनी व्यथा छे खेडूतोनी अमृत वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी।